کیا گیا اور پاکستان نے اپنا احتجاج اور اپنی تشویش ریکارڈ کرائی. مطالبہ کیا کہ ہمیں جواب چاہیے کہ یہ کیا ہوا. کیا یہ حادثہ ہے؟ یہ آپ کا ٹیکنالوجیکل فیلئر ہے؟ یہ آپ کی بدنیتی ہے؟ یہ جاریت ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ نے اس حرکت سے اس پورے خطے کے امن و استحکام کو تہ و بالا کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں توقع کر رہا ہوں بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کہ مجھے اس کا مناسب جواب ملے گا. ہم نے جو سلامتی کونسل کے مستقل ممبران ہیں ان کو دفتر خارجہ بلا کر بریف کیا ہے. اس میں امریکہ ہے، اس میں چین ہے، اس میں روس ہے، اس میں فرانس ہے، برطانیہ ہے. ان سب کو ہم نے مدعو کیا ہے اور اپنی تشویش اور یہ جو ایک دو ایٹمی قوتوں کے مقابلے کے درمیان ایک جھڑپ کا ذریعہ بن سکتا تھا، ہم نے کہا ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی کو، سلامتی کونسل کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. جو ایوییشن اتھارٹی ہے، انٹرنیشنل نارمز ہیں، ایس او پیز ہیں، ان کی خلاف ورزی جو ہوئی ہے اس کے بارے میں انہیں کوگنیزنس لینی چاہیے اور ذمہ داروں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. اب ہندوستان کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی انویسٹیگیشن کا ہم نے آرڈر کر دیا ہے. ہندوستان کا میڈیا کہہ رہا ہے اور بڑا جو ذمہ دار جرنلسٹ ہے، میں آپ کو نام بھی دے سکتا ہوں، انہوں نے کہا ہے خدا نہ خواستہ پاکستان سے یہ حرکت ہوئی ہوتی تو انڈین میڈیا آج آگ بگولا ہوتا. میں پاکستان کے میڈیا سے درخواست کروں گا کہ جس طرح پاکستان کے معاملے پہ سارا انڈین میڈیا یکجا ہو کر ہماری کھچائی کرتا ہے، ہمارا پاکستانی میڈیا ہندوستان کی اس ناجائز حرکت پر انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے. انہیں پاکستان کے موقف کو اجاگر کرنا چاہیے، نہ صرف قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنا چاہیے. اب یہ میزائل آ کے گرتا ہے میاں چنو کے پاس. فرض کیجئے تھوڑا سا یہ ادھر گر جاتا تو میاں چنو شہر کے اوپر گرتا، اور شہر کے اوپر گرتا گنجان آبادی ہے، اور وہ جو اموات ہوتی، شہادتیں ہوتی، اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ ہم کس سے جواب طلب کرتے؟ اگر جہاز میں جو مسافر جا رہے تھے، اگر جہاز گر جاتا اور وہ معصوم فیملیز اور جانیں متاثر ہوتی، اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ یہ بڑے سنگین، یہ ایک بھیانک ایک کارروائی ہے اور ہمیں مطمئن کیا جائے. ہم منتظر ہیں اور بین الاقوامی کمیونٹی جو انٹرنیشنل نارمز، انٹرنیشنل لا، یو این چارٹر، انسانی حقوق کی پاسداری کرتی ہے، آج ان کی آزمائش ہے کہ وہ خاموش رہتی ہے یا اس مسئلے کو ٹیک اپ کرتی ہے. اگر انہیں انسانی جانوں میں دلچسپی ہے تو اس واقعے کو وہ صرف نظر نہیں کر سکتے. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. پوری قوم جانتی ہے کہ 26 فروری 2019 ہندوستان نے ایسی ہی جارحیت کی تھی. ان کے لڑاکا طیارے پاکستان کی سرزمین میں داخل ہوئے، بالا کوٹ پہ بمباری کی اور یہاں سے رخصت ہوئے. 27 تاریخ کو پاکستان نے اس کا نپا تلا محتاط جواب دیا. ان کے 2 لڑاکا طیارے مار گرائے اور ابھی نندن کو چائے پلا کر رخصت کیا. لیکن اگر پاکستان ذمہ داری کا ثبوت نہ دیتا 26 فروری کو اور اس واقعے پہ، تو حالات بگڑ سکتے تھے. اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے؟ یہ سوال ہے جو پاکستان کی میڈیا کو پاکستان کی حکومت کر رہی ہے
और पाकिस्तान की आवाम को बैनुल-अक़वामी बिरादरी से करना चाहिए और हम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इसका हमें माकूल और मुनासिब जवाब मिलेगा। और फ़र्ज़ कीजिए, मान लिया कि आपकी नीयत ख़राब नहीं थी, हादसा हो गया, तो वो भी ख़तरनाक बात है कि क्या आपका सिस्टम इतना कमज़ोर है कि आप इस किस्म के हथियार रखते हैं जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, कोई ज़िम्मेदाराना रवैया नहीं है, तो क्या आप इस काबिल हैं कि आपके पास ऐसे हसास हथियार हों? ये भी सवाल उठता है और इसका भी नोटिस लेना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवालात हैं जिनके जवाब का मैं मुंतज़िर हूँ, और जब जवाब आएगा तो फिर पाकिस्तान अपना लाहेमल आगे पेश करेगा। अच्छा सर, भारत से डायरेक्ट कोई बात की है किसी वज़ीर ख़ारजा से या दफ्तर ख़ारजा से? नहीं, हमने उनके जो एक्टिंग हाई कमिश्नर हैं उनको दफ्तर ख़ारजा बुलाकर हमने अपना एहतजाज और अपनी तशवीश रिकॉर्ड करवाई है, और डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए हमने एक्सप्लेनेशन कॉल की है। तो दूसरा ये बताएगा कि रशिया और जो यूक्रेन का मसला है, पाकिस्तान उसमें उनकी सालसी के लिए कोई ऐसा कोई क्या प्ले, क्योंकि आपका ये विजिट भी हुआ वहाँ पर, इसके बारे में कुछ बताएंगे पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान चाहता है कि गुफ्तो शुनीद से, डायलॉग और डिप्लोमेसी से ये मसला हल हो। मसला संगीन है, मसला मज़ीद बिगड़ सकता है और ये यूक्रेन से आगे बढ़ सकता है। मुझे इल्म में है कि बहुत से ममालिक इस पे कंसर्न अपनी शो कर चुके हैं, और तस्वीर के दो रुख हैं। एक तरफ बहुत से यूरोपियन ममालिक हैं, मिसाल के तौर पे पोलैंड है, फिनलैंड है, हंगरी है, रोमेनिया है, जो साथ साथ लगते हैं, वो परेशान हैं। उन्हें अपनी, और बहुत से यूरोपियन ममालिक हैं, उन्हें अपनी सिक्योरिटी पर तशवीश है, और वो समझते हैं कि ये जो जारहाना कार्रवाई है उससे उनकी आबादी और उनके मुल्क मुतासिर हो सकते हैं। दूसरी तरफ रूस समझता है कि जिस तरह नेटो की एक्सपेंशन हो रही है ईस्टवर्ड्स, वो उनकी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन करती है और सीरियस मामला है। और बकौल उनके, हम बारहा नेटो को भी और अमेरिका को भी अपनी तशवीश का इजहार करते रहे, अपने खदशात का इजहार करते रहे, लेकिन हमारी न सुनी गई। अब ये दो चीज़ें हैं। पाकिस्तान समझता है, पाकिस्तान ने इस मामले में अपनी जो स्टेटमेंट है, एक बड़ी बैलेंस स्टेटमेंट हमारे जो सफ़ीर हैं न्यूयॉर्क में वो दी है, जिसमें कि हमने कहा है जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी फॉर ऑल स्टेट्स, सिक्योरिटी सेलेक्टिव नहीं हो सकती कि मैं अपनी सिक्योरिटी का फिक्र करूं और आपकी सिक्योरिटी का फिक्र न करूं। सिक्योरिटी फॉर ऑल स्टेट्स। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इंटरनेशनल लॉ का एहतराम करता है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो यूएन चार्टर का एहतराम करता है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो समझता है कि जंग से मसाइल बिगड़ते हैं, सुलझते नहीं हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हर जगह ये कहा है कि जंग से मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं हैं। और हम एक ऐसा मुल्क है जिसने 20 साल जंग का खमियाजा भुगता है, अफ़गानिस्तान की जंग का। 80,000 से ज़्यादा हमारी कैजुअल्टीज़ हुई, 150 अरब डॉलर से ज़्यादा हमारी मईशत का नुकसान हुआ, और दहशत गर्दी की जो कीमत पाकिस्तान ने अदा की वो आपके सामने है। तो हम समझते हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो उससे न सिर्फ मासूम शहरी मुतासिर होंगे बल्कि इंटरनेशनल लॉ भी इफ़ेक्ट होता है। पाकिस्तान ने फैसला किया है, मेरी कल वज़ीर आज़म से इस मौजू पे गुफ्तगू हुई, और कल आपको खुशी होगी सुनकर कि पाकिस्तान की एयर फोर्स में
एक लेटेस्ट एडिशन हुई है J-10C लड़ाका तैयारे का हमें पहली खेप मिल गई है और उसके जो इनॉग्रल सेरेमनी थी उसमें मैं वज़ीर आज़म के साथ कामरा था, तो वहाँ कामरा की उस फंक्शन में मुझे मौका मिला इस मामले पे वज़ीर आज़म से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा भी तशरीफ़ फरमा थे कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। पाकिस्तान बहुत इस नाजुक सूरत हाल से फूंक फूंक के कदम रख रहा है, सबके जज्बात का एहतराम करते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमने फैसला किया है कि यूक्रेन की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम करेंगे और वज़ीर आज़म ने हिदायत दे दी है और इंशाअल्लाह अनकरीब हमारे C-130 तैयारे जो हैं वो कुमक लेकर यूक्रेन वार्सो जाएंगे, पोलैंड जाएंगे जो कि हमसाया मुल्क है, और वार्सो में जहाँ से हमने अपने स्टूडेंट्स को लेकर आए और वहाँ उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। एक आखिरी बात, मैं बिलावल ने कहा था कि कहाँ है हुकूमत पाकिस्तान, मैं बिलावल को बताना चाहता हूँ यहाँ है हुकूमत पाकिस्तान और हमारे बच्चे बखैर खूबी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान लौट आए हैं और जो कुछ रह गए हैं उनके सिलसिले में पोलैंड की वज़ीर ख़ारजा के साथ, हंगरी के वज़ीर ख़ारजा के साथ, रोमानिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ, यूरोपियन यूनियन के जो हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ, रूस के वज़ीर ख़ारजा के साथ मेरी अपनी बात हुई है उन बच्चों के सेफ इनखला के लिए, उन फैमिलीज़ का जो हमारे नेशनल्स हैं उनकी सेफ एग्ज़िट के लिए। हमारे फॉरेन ऑफिस ने उस पर अपना रोल अदा किया है, बल्कि जो हम पर मिसाइल फेंक रहे हैं हादसाती तौर पर, जो उनके बच्चों का कोई वली वारिस नहीं था, उनके बच्चों को, हिंदुस्तानी बच्चों को हमने अपने बच्चों के साथ बिठाया बसी और खाना भी खिलाया। हमने पाकिस्तान ने उनका, क्योंकि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, वहाँ उनको कोई पूछने वाला नहीं था, तो हमने इंसानियत की बुनियादों पर जो खिदमत कर सकते थे हमने की। तो सर ये बताएं कि कल के जलसे में खान साहब ने जो आर्मी चीफ साहब और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बातें की हैं, क्या ये एक वज़ीर आज़म के शायद निशान है? कौन सी बात की है उन्होंने? कि बाजवा साहब को जिक्र किया है कि जी देखिए इमरान खान साहब ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो लफ्ज़ ही वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये जलसे की आवाम आज खुद नारे लगा रही है, अब उसका मैं क्या करूं। उन्होंने तो यहाँ ये कुछ कहा है। OIC की मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद में। को किस तरह देख रहे हैं? आपका अपना जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप। देखिए मैं पहले बार कह चुका हूँ, मुझे कोई तरीन ग्रुप दिखाई नहीं देता, मैं उसको अहमियत नहीं देता। मुझे कोई अलीम खान हमारे दोस्त हैं, कोई ग्रुप नहीं। मैं समझता हूँ कि जो बल्ले के निशान पर मुंतखब हुआ है वो तहरीक इंसाफ के आइन, तहरीक इंसाफ के मैंडेट का पाबंद है। वो इमरान खान को आइनी तौर पर, इखलाकी तौर पर वोट देने का पाबंद है, और जो नहीं दे सकता, फर्ज कीजिए मतलब है कोई सुना है कि काम अच्छा है, ठीक ठाक है, बैग जरा काफी वजनी है, फर्ज कीजिए कि कोई अपने ज़मीर का, पहले तो इंशाल्लाह करेगा कोई नहीं, मुझे यकीन है हमारा कोई नहीं करेगा, फर्ज करे कोई सौदा कर भी देता है तो फिर उसे अखलाकी तौर पर अपनी सीट से इस्तीफा देना चाहिए, और जिस टिकट पे लड़ना चाहता है, पीपल्स पार्टी पे लड़ना चाहता है, नून पे लड़ना चाहता है, JUI की टिकट पे लड़ना चाहता है, उससे इलेक्टो कराए, फिर जिसको मर्जी वोट दे। लेकिन जब तक वो बल्ले की टिकट पर मुंतखब होके आया है, इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, फाइनेंस बिल में जो पार्टी की लाइन है उसको टो करना है, ये कानून कहता है। तो साहब OIC के लोग आ रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा।
इंशाअल्लाह हमारे साथ रहेगी। आज शाम में सर तुम सब OIC के लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में, कब तक पेश होगी? अदमता तो तहरीक पेश कर दी उनने, इजलास कब तक बुलाया जाए? देखिए, वोटिंग के बारे में स्पीकर साहब फैसला करेंगे, ये अख्तियार उनका है और वो कानूनी तौर पर मशवरा कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 22 मार्च को और 23 मार्च को एक बहुत अहम इजलास होना है इस्लामाबाद में, जो है इस्लामी उम्मा के वज़रा ख़ारजा का, और ये पाकिस्तान को अरसे दराज के बाद ये एजाज़ हासिल हो रहा है कि कल शाम तक 46 वज़रा ख़ारजा अपनी आमद कन्फर्म कर चुके थे और ये तादाद बढ़ भी सकती है। तो मेरी ख्वाहिश है बशरीत पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के, जो समझता है कि बड़े अहम इश्यूज़ उस पर डिस्कस होने हैं, अफ़गानिस्तान का मसला है, कश्मीर का मसला है, फ़लस्तीन का मसला है, और बैनुल-अक़वामी मसाइल हैं, इस्लामोफोबिया है और इश्यूज़ हैं बड़े बड़े उम्मा के लिए जो अहमियत रखते हैं, वो डिस्कस होने हैं। तो मेरी मुअद्दबाना गुजारिश होगी हिज़्ब इख्तिलाफ के कायदीन से कि इसका ताल्लुक़ हुकूमत पाकिस्तान से नहीं, सल्तनत रियासत पाकिस्तान का इमेज है इससे, और वो तावन फरमाएंगे और उसमें कोई रखना अंदाजी नहीं डालेंगे। 23 मार्च को सर ये वीडियो बयान जारी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि SCPO को हटाएं और मेरे थाने के SHOs बदले, मैं जाऊंगा नहीं इस्लामाबाद, तो क्या आप मनाएंगे उन्हें? अहमद हुसैन डेढ़ साहब हम हार देखिए, डेढ़ साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, और उनकी हर जायज़ बात को हम तवज्जो देनी चाहिए और देते भी हैं, और अगर कोई मसला है तो उसको हल कर लिया जाएगा, और वीडियो रिकॉर्ड कराने के बगैर भी हल हो सकता है। 23 मार्च को सर इन्होंने ये आपका पूरा 23 मार्च को PDM ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है। वज़ीर आला पूरा एतमाद है, अगर इमरान खान हटा देते हैं तो नए वज़ीर आला कौन होंगे? देखिए, इमरान खान साहब NPA से मिले हैं, लाहौर तशरीफ़ ले गए थे, जावेद अंसारी साहब बीच में बैठे थे और बड़ी दबंग बात की इन्होंने, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, और अल्लाह करे जिन जज्बात का इजहार हाजी जावेद अख्तर अंसारी ने किया, अल्लाह करे हर MPA उस जज्बात का इजहार करे। भरी महफिल में किया, शुक्रिया, हमें फ़ख्र है आप पर, अच्छा फ़ख्र है, मुझे फ़ख्र है कि आप मेरे MPA हैं और तहरीक इंसाफ के MPA हैं। अब वो सबसे मिले और मिल रहे हैं, सबकी आरा सुन रहे हैं, और उसके बाद सारी पार्टी ने इमरान खान साहब को इख्तियार दे दिया है कि वो जब जो फैसला करेंगे उसको सारी पार्टी कबूल करेगी। उर्दू साहब, जैसे कि OIC की ये कॉन्फ्रेंस 23 मार्च को हो रही है, PDM का लॉन्ग मार्च भी 23 को है, क्या है मतलब है उन्होंने अनाउंस किया है, चेक कर ले। अब लेकिन क्या इस मौके पर अभी तक मेरे इल्म में नहीं क्या है, इस मौके पर मेरे इल्म में नहीं है, अगर आपके इल्म में तो बता दें, मेरी मालूमात में इजाफा होगा। अच्छा सर, अदम एतमाद आप ये कह रहे हैं कि 23 के बाद होनी चाहिए, हुकूमत ये कह रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि स्पीकर साहब ने कानूनी तौर पर इसका एग्जामिन करना है, लीगल टीम से मशवरा करना है, और जो वो गाइड फरमाएंगे हम उनके फैसलों की पासदारी करेंगे। अच्छा सर, अख्तर मलिक साहब तरीन साहब सलीम खान साहब के घर खाना खाने गए थे, तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि उनके उधर भी रास्ते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो तो आपके ग्रुप का डॉक्टर अख्तर मलिक साहब उस पर एक वाज़ेह बयान दे चुके हैं, मैं समझता हूँ उस बयान में कोई अभाम नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं तहरीक इंसाफ का पाबंद हूँ, मैं इमरान खान साहब का पाबंद हूँ, और उस मीटिंग में जिसका हवाला मैं दे रहा हूँ उसमें डॉक्टर अख्तर साहब मौजूद थे और उन्होंने गुफ्तगू भी फरमाई थी, और उनके बयान में कोई लचक नहीं थी। वो कमिटेड हैं और वो तहरीक इंसाफ के हैं, पंजाब काबीना के मेंबर हैं, और इंशाअल्लाह पार्टी का साथ देंगे। बच्चा है ना, तजर्बाकार है, पर्ची मिल जाती है, पढ़ देता है, वक्त के साथ साथ पुख्ता हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। क्या जवाब